Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Last class we seen that the how to set up workspace folder and some basic concept in JavaScript, how to create function, how to create an object, and how to create an array. So today we are going to create first HTTP server in Node.js. How to create server in Node.js? We are going to see that. So let's move on. If you are new in my YouTube channel, then subscribe it to my YouTube channel and hit the bell icon. If any new update will be notify you. Okay. Let's open editor. Okay. Create here inside create new folder called 02 hyphen http http server in Node.js. Hit enter. In this we create new file called app no sorry server.js server.js and कोई सा भी फाइल लिख सकते हैं app.js server.js को सो हम लोग पहले HTTP मॉड्यूल के बारे में समझेंगे HTTP मॉड्यूल प्री डिफाइंड मॉड्यूल है हाउ टू क्रिएट सर्वर ओके हाउ टू क्रिएट सर्वर इन HTTP how to create server in Node.js. Okay. Below this we can write first we need to import HTTP module. Import HTTP module which which is in present in Node.js. Present in by default present in Node.js. Okay. By default present which is by default present in Node.js. Okay, present in Node.js. This is a pretty important HTTP module. This module is predefined, 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 or cust core module. This module is predefined core module in Node.js. How to import like this. How to import like this. How to import लिखेंगे हम लोग लिखेंगे const will be equal to http will be equal to require. This is a keyboard in Node.js we can use it. Require we can put inside double quote. Require inside single quote double quote whatever we want. Node.js where you can write http. Okay, like this we can import. How? Let's see here. const we can use let but हम लोग इसे बात चेंज नहीं करेंगे इसलिए हम const यूज कर रहे हैं. Const will be equal to http will be equal to required required inside required you can put it this यहाँ पर लिखेंगे http. Okay, this will be important. इसको थोड़ा रीनेम कर देते हैं क्रिएटिंग http सर्वर देने जो. ओके ओके creating HTTP server small creating HTTP server. Okay, ये Node.js let इंपोर्ट कर लें उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग को पोस्ट एंड होस्ट नेम डिफाइन करेंगे. हाउ टू डिफाइन पोस्ट एंड मतलब पोर्ट एंड होस्ट नेम. const host name will be equal to होस्ट टाइम स्ट्रिंग होगा इसलिए हम लोग डबल कोट कैंसिल क्योंकि इसमें लाइक दिस हम ऐसे यूज करेंगे. आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं. नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं. नॉर्मली वी कैन यूज दिस. You want any use anything like here
use in 127 like 55.55.55.55 कुछ भी यूज कर सकते हैं. It is not necessary to use 127.0.0.1, but generally every person will using this, so that's why we are going to use this. Okay, const port will be equal to, normally we can use 5000 or you can use 8000, 8800 something, whatever you want you can use it, like, but you can use 5000 is simple. That's why we are using port, host name. पोर्ट और होस्ट नेम हम लोग डिफाइन करते हैं. आप सर्वर क्रिएट करते हैं. चल लेट्स गो, वी आर गोइंग टू क्रिएटिंग सर्वर. कॉन्स्ट सर्वर विल बी इक्वल टू क्रिएट सर्वर. बिल्कुल, सर्वर विल बी इक्वल टू क्रिएट http डॉट क्रिएट सर्वर. क्रिएट सर्वर फंक्शन है जो एक रिक्वेस्ट लेगा. इसमें हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे. कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेगा दो ठो, एक तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. इसमें दो आर्गुमेंट जाएगा, एक रिक्वेस्ट कामा रिस्पॉन्स. ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो आर्गुमेंट इसमें लेंगे. we can define response dot response dot status code will be equal to 200. Response dot status code will be equal to 200. Response dot send response dot send will be equal to something we want to welcome to node. Yes, welcome to Node.js server creation. Welcome to Node.js server creation. अब हम सर्वर को लिस्ट कराएंगे तब ना. इट विल बी स्टार्ट सर्वर. ओके, सर्वर डॉट लिसन विल बी इक्वल टू इंसर्ट एक कॉल बैक फंक्शन. पहले हम पास करेंगे होस्ट नेम पोर्ट और होस्ट नेम पोर्ट एंड होस्ट नेम, and then we are passing through a callback function. Inside callback we are, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे. सिंपली वी कैन राइट इनसाइड callback, we can write console.log backtick server node.js server started at port at http:// $hostname port number $hostname $port. Okay, now server is started. How to run server? You know that how to run. Open terminal, run here. We can cd space change directory, cd space 02 creates one. Now node space server.js, hit enter. Something error. What is that error? Okay, server listen port host name. Host name is not defined. Okay. It is telling a host name. Okay, we define a capital letter name, so that's why it came through like this. Okay, now run. Yeah, Node.js server started at http:// अब हम लोग इसको चेक करें, कैसे करेंगे. जो मेरा सर्वर रिस्पॉन्स आएगा, कंट्रोल इसको कॉपी करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे
क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हिट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यूआरएल, हिट एंटर, बट दिस साइट कांट बी रीच, व्हाई, समथिंग वेंट रॉन्ग, what is wrong, response, okay, send date, something here, okay, response dot send होगा, not send date, okay, response dot send होगा, not send date. now refresh it, पहले सर्वर स्टार्ट करेंगे तब रिफ्रेश करेंगे, ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सर्वर देन रिफ्रेश इट, यस नाउ इट विल गुड। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, फिर भी वही है, अब क्या प्रॉब्लम आया देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वेलकम टू नोड.जेएस, ये क्या प्रॉब्लम है भाई, डॉट सेंड टाइप, रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन, आई नो दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड नहीं, रिस्पॉन्स डॉट एंड होगा, ओके, रिमूव दिस एस, नाउ सी इट, check it, yeah, we are getting on our welcome to Node.js server creation। कैसे क्रिएट करते हैं एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं, सर्वर कैसे क्रिएट करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे HTTP मॉड्यूल को, HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हम लोग होस्ट नेम और पोर्ट नंबर, होस्ट नेम और पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद कॉन्स्ट, इसको हम कॉन्स्ट वेरिएबल कॉन्स्ट, इस सर्वर अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, सर्वर लो या ऐप लो या जो व्हाट यू वांट यू कैन चूज इट, देयर इज नो मैटर, ओके। यहाँ पे सर्वर ले लिए, सर्वर HTTP, दिस इज अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल इन Node.js, HTTP जो हम यहाँ पे इंपोर्ट किए वो यहाँ पे लिखे डॉट क्रिएट सर्वर, ये प्री डिफाइंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर डालते हैं, दिस इज फंक्शन क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड रहता है सर्वर क्रिएट करने के लिए इन Node.js। और ये क्या लेता है, ये लेता है रिक्वेस्ट लिस्टनर, HTTP डॉट रिक्वेस्ट लिस्टनर, ये तो हो गया, मतलब टाइप स्क्रिप्ट कर दे दिया है यहाँ। इसमें दो रिक्वेस्ट लेता है, दो पैरामीटर पास होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस कोड 200, मतलब ये 200 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ट्रू मतलब सही कोड, मतलब जब भी कोई काम सही होता है उसके लिए हम 200 यूज करते हैं। जैसे मुझे कोई काम सर्वर क्रिएट करना है, सर्वर क्रिएट सक्सेसफुल हो गया, 200 कोड यूज करें। अगर मान लो पेज कहीं पे आप देखते हो, किसी भी ब्राउजर को ओपन करते हैं लाइक दैट, हम यहाँ पे जाके गिटहब ओपन करते, कहाँ गया गिटहब, ठीक, गिटहब ओपन कर लिए, नोट दिस, ओपन दिस गिटहब, ओके, सर्च है something 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 something, hit enter, see we could not find any repository today, ये क्यों है, क्योंकि 404 पेज नोट फाउंड दिया हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड, हम अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को दिखाते हैं, गो टू, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे स्लैश कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे डाले सी व्हाट हैपेंड, 404, दिस इज नॉट अ वेब पेज यू आर लुकिंग फॉर, ओके, ये एरर मतलब जो आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आया। तो सबका मतलब स्टेटस कोड का अपना अपना रहता है, जैसे हम यहाँ पे Node.js स्टेटस कोड सर्च क्लिक करेंगे, आएगा स्टेटस कोड इज स्टार HTTP Node.js version documentation, go to here, open it, status code, where is status code, Node.js officially website, docs,
go to docs, API reference documentation, okay, HTTP स्टेटस कोड, ओके लीव इट, बाद में देखेंगे क्या है स्टेटस कोड जब हम लोग स्क्वाड ऑपरेशन करेंगे ना, सर्वर मोंगोडीबी का यूज करके तब देखेंगे। तो आज हम लोग देखें कैसे सर्वर क्रिएट किया जाता है, ये हम लोग देख लिए सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है। अब इसमें नॉर्मल टेक्स्ट हम लोग भेजे हैं इसलिए नहीं ये मतलब ऐसे चला गया नॉर्मल टेक्स्ट। अगर हम लोग यहाँ पे हम HTML भेजना चाहते हैं, यानी मतलब HTML टैग लाइक H2 टैग हम चाहते हैं, H2 टैग यहाँ पे जाके H2 टैग के फॉन्ट वाला आए टेक्स्ट, तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं से जो भी चेंज किए होंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। सर्वर रीस्टार्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये H2 टैग ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं वेलकम टू नोड.जेएस सर्वर क्रिएशन प्रिंट हो, लेकिन H2 टैग भी प्रिंट हो गया। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे माइम टाइप, माइम टाइप यूज करते हैं। जो माइम टाइप होता है ना, उसका यूज करने से यहाँ पे जो HTML का टैग है वो प्रिंट नहीं होगा। तो माइम टैग हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो कुछ माइम टैग हम लोग यूज करते हैं लाइक ऐसे, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, this is response dot set header. Inside set header we can write like this: content type, content 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 hyphen type, content type will be equal to not comma, here we can put it comma, content type will be equal to text slash HTML, you can put it text slash HTML. okay, now check it. First of all, close the server, Control C, terminate server, and then start again server. Now go to here, refresh it, ये देखिए अब आ रहा है वेलकम टू नोड.जेएस एकदम H2 पे। तो हम कोई भी HTML टेक्स्ट, जब भी HTML पेज यूज पास करेंगे, पेज पास करना रहेगा, हम इसका यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर का। इससे हम लोग सर्वर में HTML पास कर सकते हैं। अब स्टैटिक पेज यूज कब पास करना उसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम लोग सब पढ़ेंगे उसके बाद जानेंगे क्या क्या होता है। हम लोग सर्वर क्रिएट करना जानेंगे कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं। to create new file called 03 OS module, OS module, hit enter. Inside we can create new file .server.js, hit enter. server.js फाइल हम क्रिएट कर लिए। server.js फाइल क्रिएट कर लिए। हम लोग पहले इसमें अब क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जांपल हम लोग ने देखे थे कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो const OS will be equal to required, const OS will be equal to required, inside required parts like OS, we can type OS operating system module, import कर लिए। we are using OS module, OS module में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे चलिए जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन Node.js इंटर ऑफिशियली ओपन Node.js डॉक्यूमेंटेशन, API reference documentation, where OS module, where is OS, HTTP module तो बता ही दिए। HTTP module में कैसे क्लास HTTP.agent मतलब क्रिएट सर्वर, कैसे सर्वर क्रिएट करना रहता है, वो सब हो गया। और उसके बाद आप चलते हैं OS मॉड्यूल कहाँ, OS मॉड्यूल दिस OS मॉड्यूल देखिए कैसे इंपोर्ट करते। कॉन्स्ट OS विल बी रिक्वायर्ड, OS इंपोर्ट कर लिए पहले। उसके बाद हम लोग यूज करना है OS डॉट आर्किटेक्चर, OS
और अब इसका कौन कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज इसका तो बहुत सारा फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं जो फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पे हम 2-4 एग्जांपल बता देंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट होस्ट नेम हम लोग यूज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट होस्ट नेम कैसे यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट होस्ट नेम रिटर्निंग स्ट्रिंग। चलिए देखते हैं, नोट लगे है, वी कैन गो बैक, वेर एग्जांपल इन दिस। अच्छा हम बताते हैं कैसे यूज करना है। ओके चलिए कोड में जाते हैं कैसे यूज करना है। लेट simply we can write let total memory first, we are going to see total memory. Let total memory will be equal to os dot total। यहाँ पे टोटल लिखिएगा, टोटल मेमोरी देखिए यहाँ पे आ गया टोटल मेमोरी, ना ना ऐसे ये नहीं होगा, हम लोग लिखेंगे टोटल, उसके बाद मेन डाल देंगे MEN, दिस इज अ टोटल मेमोरी फंक्शन। ओके अब हम लोग इसको रन करेंगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग ओके कंसोल डॉट लॉग विल बी, यहाँ पर हम तो क्या टोटल मेमोरी प्रिंट करेंगे और क्या करेंगे, टोटल मेमोरी सर्वर स्टार्ट है, सर्वर इसमें नहीं क्रिएट किया, अच्छा पहले इसमें काम करते हैं, सर्वर पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मेमोरी के बारे में देखेंगे। क्लोज दिस, सर्वर बार बार क्लोज करना है, बार बार रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग बार बार सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए बार बार सर्वर को रीस्टार्ट हम लोग नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे नोडमोन हम लास्ट वीडियो में बताए थे, सेकेंड वीडियो में कैसे नोडमोन इंस्टॉल करना पड़ता है, तो एक बार फिर हम बता देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे npm install -g nodemon, hit enter, this will install nodemon। ये इंस्टॉल कर लेगा, नोडमोन इंस्टॉल हो गया। अब नोडमोन का वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं, नोडमोन वर्जन हिट एंटर 2.7.0 नोडमोन इंस्टॉल है। हम लोग इसमें इस फाइल को इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करेंगे, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, कमांड रन करेंगे npm init, इससे क्या होगा पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट करेगा, तो पैकेट डॉट जेसन कंट्रोल से रन कमांड npm init -yes डाल देंगे, बाय डिफॉल्ट जो रहेगा सब ट्रू करके ये इंस्टॉल कर लेगा। देखिए यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन आएगा, मुझे ये यहाँ पे जो स्टार्ट कमांड है, यहाँ पे नोड्स जो सर्वर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे nodemon सर्वर डॉट जेस, जब हम अब हम रन करेंगे npm स्टार्ट रन करेंगे, सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई भी चेंज होगा ऑटोमेटिकली restart the server। okay now we are going to create, first of all creating server। कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं, const http will be equal to require, const http will be equal to require http, const http will be equal to require http। उसके बाद हम लोग होस्ट नेम डिफाइन करेंगे, होस्ट नेम will be equal to not, this is not required now, remove this, why this, host name node, const host name will be equal to 127.0.0.1, const port will be equal to 5000। सर्वर क्रिएट करते हैं हम लोग, const server will be equal to http dot create server http dot create server inside one callback
request and response. We are passing through request and response. Inside callback we are passing request comma response. 2 पैरामीटर, हम कोई सा भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड विल बी इक्वल टू 200 response dot set header will be equal to content upon type will be equal to will be not इसके टेक्स्ट स्लैश प्लेन है HTML लिखेंगे। टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिखेंगे तो नॉर्मली जैसे टेक्स्ट प्रिंट होता है वैसे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ना रिस्पॉन्स डॉट एंड सर्वर स्टार्टेड। अब सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे सर्वर डॉट लिसन एक इनबिल्ट नोड.जेएस फंक्शन इसलिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे पोर्ट डाल देंगे, होस्ट नेम डाल देंगे। होस्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे वन कॉल बैक डालेंगे। वन कॉल बैक डालने के बाद वन कॉल बैक डाल देंगे। वन कॉल बैक डाल देंगे। इंसर्ट कॉल बैक यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो लॉग कंसोल डॉट लॉग विल बी सर्वर इज स्टार्टेड एट सर्वर इज स्टार्टेड। हम लोग को पता है क्या है, HTTP कॉलन यूज करना है कभी भी। सर्वर स्टार्ट हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्वर तो यही दिए हैं तो रिफ्रेश इट, सर्वर इज स्टार्टेड नाउ कमिंग। ओके, सर्वर इज स्टार्टेड क्योंकि हम नोड में कॉन्फ़िगर किए इट विल ऑटोमेटिकली मतलब रीस्टार्ट द सर्वर, दैट्स व्हाई। अब हम लोग चलिए डिफाइन करते हैं, ओएस मॉड्यूल यूज करते हैं। ओएस मॉड्यूल कैसे यूज करना है, below before this we can write like this। ओके, टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए ओएस मॉड्यूल यहाँ पर लिखते हैं लेट टोटल मेमोरी will be equal to operating system dot total memory ऐसे भी पहले हम लोग डिफाइन करते हैं सम स्ट्रिंग, तब ना इसका रिजल्ट जो आएगा वेब पेज पे शो करेगा, अदरवाइज ये कंसोल लॉग में इसका रिजल्ट शो करेगा। लेट आउटपुट will be equal to empty string, let output will be equal to empty string, and let output will be equal to empty string। okay, now ओके नो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना। यस प्रिंट फंक्शन पहले क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट फंक्शन। पहले हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कहीं पे भी क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे क्रिएट करते हैं, इसमें है क्या, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करते हैं फंक्शन लाइक लेट प्रिंट will be equal to an arrow function okay, print will be equal to an arrow function
इनसाइड हम पैरामीटर पास करेंगे, कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग पैरामीटर रहना चाहिए, स्ट्रिंग पैरामीटर। अब इस स्ट्रिंग पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे आउटपुट। आउटपुट जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिफाइन किया उसको पास करते हैं, आउटपुट विल बी इक्वल प्लस इक्वल टू, क्योंकि हम एक थोड़ी यही थोड़ी प्रिंट करेंगे, ओके, विल बी इक्वल टू नॉर्मल बैकटिक डॉलर str, ओके, डॉलर str पास करेंगे बाय, ओके। now we are calling this print function here, calling this print function here. What is the logic how to call a print function here? Okay, first of all calling, and then what happened I don't see it, bro. Inside we are passing backtick total memory will be equal to dollar, total memory will be equal to dollar total memory, okay, will be equal to dollar total memory. Do one thing, try इसको यहाँ पे लिखते हैं तब ना फंक्शन का यूज हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। yes, now it will maybe perfectly all right. Now go to here, refresh it, something went wrong, what, open terminal, normal web करे से why print before initializing okay, he called telling you before initializing how you can call you function, okay. Below this I can write this now, let's see, refresh it, server is started done, हमको ये सर्वर नहीं चाहिए भाई, ओके। यहाँ पे हम लोग इनसाइड बैकटिक डॉलर this will be output, okay, now check it, refresh it, nothing to yeah, see we are getting total memory will be like this। क्या करेंगे हम लोग, पहले सर्वर क्रिएट कर लेंगे, सर्वर जैसे क्रिएट करते हैं वैसे सर्वर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फंक्शन डिफाइन करेंगे, मतलब फंक्शन जरूरी नहीं है डिफाइन करने के लिए, हम लोग कंसोल लॉग में डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पे जो है इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक। कमेंट आउट करने के बाद इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, बिलो दिस लॉग लेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सिंपली वी कैन राइट इट टोटल मेमोरी, टोटल मेमोरी राइटिंग, सी सर्वर टोटल मेमोरी आ गया ना यहाँ पे 8433, यहाँ पे भी देखिए 8433963008, यहाँ पे भी देखिए 8433963008 है ना। तो हम कंसोल लोग, लेकिन हम आप लोग को अच्छे से देखने के लिए हम वेब पेज पे अति किए हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। वेब पेज पे क्या वो डायरेक्टली वी कैन राइट लाइक दिस, कंसोल लॉग में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कंसोल लॉग में देखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, पहले अनकमेंट दिस थिंग, इसको जैसे यहाँ पे है ना, इस फंक्शन को हम लोग ऊपर में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन किए, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। इसको आप लोग चाहे तो यहीं पे कहीं पे इनसाइड दिस फंक्शन यू कैन राइट एनीवेयर, ओके, you can write like here also, let's suppose if you want to write here you can write here, not matter, it will same result, it will give same result, server is started, okay, go to here, it will give you same result, not thing to change। I suppose यहाँ पे हम टोटल मेमोरी हो गया, कंट्रोल डी यहाँ पे डालते कंट्रोल डी, टोटल मेमोरी के बाद हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे
टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी यहाँ पे डालते हैं। ओके, फ्री मेमोरी, फ्री मेमोरी। ओके, यहाँ पे फ्री मेमोरी, फ्री मेमोरी। ओके, फ्री, यहाँ पे भी फ्री मेमोरी डालते हैं, फ्री मेमोरी। लेट्स सी आउटपुट will be refresh it, not wait 1 second, here you can change it now. Inside free memory, inside of total memory, instead of total memory, you can change free memory, refresh it, see free memory of this. You can write like this, or you can do one thing inside function. Where is the icon function we define? Here you can do like this, plus, okay, total memory, control D. Here you can write total memory, total memory. Here also you can write total memory. See now what to here, refresh it. Okay, okay. Both will print aligned. So we can put it here backslash and now refresh it. But next line बनाना चाहिए भाई. What happened to next line में काहे नहीं आ रहे भाई? See, refresh it. रिप्लेस इट। अबे जितना रिप्लेस करे उतना में प्रिंट हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। जितना रिप्लेस कर रहा है उतना बार प्रिंट हो रहा है। ओके, रिप्लेस इट। यहाँ पे देखिए टोटल मेमोरी आ गया, ये आ गया। ऐसे ही हम ऑपरेटिंग मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल यूज करते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओएस मॉड्यूल के बारे में, क्या क्या पढ़ना। ओएस मॉड्यूल में कैसे फ्री, मतलब होस्ट मतलब विंडो यूजर का क्या नाम है वो जानना है, विंडो कंप्यूटर नाम क्या है वो सब देख सकते हैं ऐसे ही ओएस मॉड्यूल में। वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।